कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। গত কয়েক দশক ধরে বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টি বারবার সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এই টানাটানির খেলায় একদিকে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ব্যবস্থা, অন্যদিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর এই টানাপোড়েনের দর্শক হলো ভারতের সাধারণ জনগণ, যারা আদালত অবমাননার ভয়ে এবং সংবিধান সম্পর্কিত জটিলতা না বোঝার কারণে মুখ বন্ধ রেখে সব দেখে যাচ্ছে। দর্শকের এই তালিকায় আরও এক ধরনের দর্শক আছে, তারা হলো রাজনৈতিক দলগুলি, যারা জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে সামনে রেখে এই বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করে। ভারতের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া, যাদের কাছে প্রতিটি বিষয় টিআরপি পাওয়ার একটি মাধ্যম, তাদের দৃষ্টিতে কলেজিয়াম বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এই লড়াই আসলে বিচারপতি নিয়োগের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার উপর কাদের কর্তৃত্ব রয়েছে তার প্রতিষ্ঠার একটি লড়াই। আমি মধুরিমা, আজ দৃষ্টিকোণে এই বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কি এই কলেজিয়াম ব্যবস্থা, যাকে ঘিরে এত প্রশ্ন, এত আলোচনা? প্রায় 3 দশক ধরে চলে আসা কলেজিয়াম ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টি দেখে। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামে ভারতের প্রধান বিচারপতি ছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের 4 জন সিনিয়র বিচারপতি রয়েছেন। এই কলেজিয়াম সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম পাঠায়। সরকারের অনুমোদনের পরই বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। কলেজিয়াম নিজেই বিচারপতিদের বদলি করে এবং এতে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের মতো হাইকোর্টে কলেজিয়াম রয়েছে, যার কেন্দ্রে থাকেন তাদের প্রধান। এখানে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও হাইকোর্টের আরও 2 সিনিয়র বিচারপতি থাকেন। হাইকোর্ট কলেজিয়াম হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের জন্য সিজেআইয়ের কাছে নাম পাঠায়। সিজেআইয়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সেই নামগুলি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠায়। সরকার চাইলে কলেজিয়ামের পাঠানো নামগুলিতে আপত্তি জানিয়ে তা ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে, কিন্তু কলেজিয়াম যদি ফের একই নামে সুপারিশ করে তাহলে তা মেনে নেওয়া ছাড়া সরকারের আর কোনো উপায় থাকবে না। সমালোচকরা বিশ্বাস করেন যে এই কলেজিয়াম পরিবারতন্ত্রকে কোনো প্রশ্রয় দেয় না। তার পাশাপাশি এটি বিচার ব্যবস্থায় যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রয়োজন তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নিয়োগের দিকে তাকাই, তাহলে এসব অভিযোগের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায়। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতিদের মধ্যে এমন 6 বিচারপতি রয়েছেন যাদের বাবা হয় সুপ্রিম কোর্ট, না হয় কোনো হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। বর্তমান সিজেআই DY চন্দ্রচূড়ের বাবা YV চন্দ্রচূড় ভারতের 16তম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারপতি KM জোসেফের বাবা KK ম্যাথিউ 1971 থেকে 76 সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বাবা ছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এবং তার আত্মীয় বিচারপতি HR খান্না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। উল্লেখ্য, বিচারপতি খান্না হলেন সেই বিচারপতি যাকে দেশে জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করার জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি করা হয়নি। বিচারপতি BV নাগরত্ন, যিনি 2027 সালে 36 দিনের জন্য প্রথম মহিলা সিজেআই হবেন, তার বাবা ES ভেঙ্কটরামাইয়া প্রধান বিচারপতি ছিলেন। PS নরসিংহা এবং সুধাংশু ধুলিয়া এই 2 বিচারপতির বাবাও হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বিচারপতি বেলা ত্রিবেদীর বাবাও আহমেদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জাজ ছিলেন। অনেকের মতেই কলেজিয়ামের আড়ালে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট কঠোর পরিশ্রম ও যোগ্যতাকে অগ্রাহ্য করে যেভাবে পরিবারতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়েছে তা শুধু বিস্ময়কর নয়, দুঃখজনকও বটে। সরকার বা আইন বিশেষজ্ঞরা যে এই ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি তা নয়। সম্প্রতিকালে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় কলেজিয়াম ব্যবস্থা প্রসঙ্গে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে বলেন যে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ এবং আদালত সংসদ কর্তৃক আনা কোনো বিল বা আইনকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে না। And as a matter of record, the entire Lok Sabha voted unanimously. There was no abstention in Lok Sabha. There was no dissension. And that Amendment Act was passed. In Rajya Sabha, it was unanimous. There was one abstention.
no opposition. So we the people, their ordainment was converted into a constitutional provision. The power of the people came to be reflected through most sanctified mechanism on a legitimate platform through applicable mechanism. That power was undone. The world does not know of any such instance. I appeal to the people here. They constitute judicial elite class, thinking minds, intellectuals. Please find out a parallel in the world where a constitutional provision can be undone. কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বেশ কিছু ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে কলেজিয়াম ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। অতীতে তিনি একটি বিবৃতিও দিয়েছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করার চেয়ে নিয়োগে বেশি সময় ব্যয় করে। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टिंग जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाई कोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होता है। অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার কলেজিয়াম ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করতে এবং বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে বিচারপতি এম ভেঙ্কটাচালিয়া কমিশন গঠন করেছিল। কমিশন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের জন্য একটি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। কমিশনে সিজেআই, সুপ্রিম কোর্টের 2 সিনিয়র বিচারপতি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং সুশীল সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকা উচিত। 2014 সালে মোদী সরকার ভেঙ্কটাচলিয়া সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলস্বরূপ ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাক্ট সংসদে পাশ হয়। এর ভিত্তিতে স্থির করা হয় যে 6 জনের একটি কমিশন হবে যারা বিচারপতিদের নাম বাছাই করবে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। এতে ভারতের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের 2 জন বিচারপতি, আইনমন্ত্রী এবং 2 জন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকবেন। এনজ্যাক গঠনের জন্য সাংবিধানিক সংশোধনী সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও 2015 সালে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। এই বিষয়ে আরো অধিক তথ্যের জন্য আমরা সুপরিচিত সংবিধান বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট DK দুবের সঙ্গে কথা বলি। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि भारत में जो कॉलेजियम व्यवस्था है, क्या ये व्यवस्था अन्य किसी देश में भी है और इस कॉलेजियम व्यवस्था से क्या अनुभव रहे हैं? देखिए, आपने अगर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को सुना हो, क्योंकि वो जुडिशल फील्ड से हैं, उन्होंने ये बात चैलेंज किया है। चैलेंज से मतलब ये है कि उन्होंने साफ कहा एक कार्यक्रम में जिसमें चीफ जस्टिस स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि अगर किसी और देश में ऐसी व्यवस्था हो कि अपना उत्तराधिकारी डेमोक्रेसी में कोई चुन सके तो बताइए। उस बैठक में उस समय केजरीवाल जी थे, उस बैठक में उस समय कुछ जजेस बैठे हुए थे और चीफ जस्टिस स्वयं बैठे हुए थे कार्यक्रम में। तो अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने भी खोजने की कोशिश की, लेकिन विश्व में कहीं अन्यत्र जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ट्रिपल लेयर है। ट्रिपल लेयर से मतलब ये है, जैसे आप ब्रिटेन में जाएंगे तो यूके में व्यवस्था ये है कि उनके पास जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन है और जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए एक ओम्बेड्समेंट और है। मतलब अगर कमीशन कुछ गड़बड़ करता है तो जुडिशियल कंडक्ट एंड ओम्बेड्समेंट ट्रिब्यूनल है उनके पास कि उसकी भी शिकायत हो सकती है। तो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर जजेस अपॉइंटमेंट करें, ऐसी व्यवस्था डेमोक्रेसी में नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट का सेपरेट कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन होता है और कमीशन बायस हो जाए तो उसके ऊपर भी एक ट्रिब्यूनल होता है। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब जब कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर भारत में चर्चा होती है तब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की चर्चा स्वाभाविक रूप से होने लगती है। तो क्या एनजेएसी को कॉलेजियम व्यवस्था के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, विकल्प आप क्यों कहते हैं?
विकल्प वहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है जहाँ पर ओरिजिनल व्यवस्था का एक विकल्प देते हैं। ये तो व्यवस्था ही नहीं है, कॉलेजियम तो व्यवस्था ही नहीं है। आप आर्टिकल 142 और आर्टिकल 145 का ये सारा खेल है, और आर्टिकल 142 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करता है वो ऑर्डर लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। वो सारे ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होते हैं, खासतौर से जिसमें प्रेसिडेंट बनता है वो बाइंडिंग होते हैं। और आर्टिकल 145 में ये चर्चा की गई है कि भाई आप अपने रूल्स बना सकते हैं। तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाता है उसमें आर्टिकल 145 में भी ये कहा गया है कि रूल बनाने के बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि रूल भी आप बनाकर सीधे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। रूल बनाने के बाद भी आपको भारत के प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। और भारत के प्रेसिडेंट से अनुमति का मतलब समझते हैं? प्रेसिडेंट से अनुमति का मतलब बिल्कुल साफ होता है कि आर्टिकल 74 का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट अकेले तो करते ही नहीं। प्रेसिडेंट शैल हैव टू वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सरकार आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने रूल भी अगर बनाएगा तो उसको सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम ये रूल बनाकर इंप्लीमेंट कर दें कि नहीं कर दें। उससे पहले कर नहीं सकते। अब दोनों आर्टिकल्स में एक द्वंद्व है। द्वंद्व ये है कि आर्टिकल 142 में जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा वो अपने लोअर कोर्ट्स पर, अपने सिस्टम पर, अपने रेगुलेशंस उसके लागू हो जाएंगे। तो क्या ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये जुडिक्शनल इशू है, जुडिशियल इशू है क्या? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो अपने को सबसे पहले तो दो चीजों में फर्क लगाना पड़ेगा। नाउ द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी। जुडिशियरी का जब जुडिशियल फंक्शन होगा तो बाइंडिंग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे बाइंडिंग हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है जो जुडिशियरी के पास एक्स्ट्रा पावर है, हमने दे रखा है, उनको डेलीगेट कर रखी है। तो इसलिए जब आपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया या वो कॉलेजियम बनाया, तो कॉलेजियम ओरिजिनल व्यवस्था नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसका विकल्प नहीं है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन विकल्प हो सकता है आर्टिकल 124 का, और आर्टिकल 124 में जो ओरिजिनल व्यवस्था है उस व्यवस्था में यह कहा गया है कि नाउ सरकार उस पर चुनेगी और कंसल्टेशन लेगी चीफ जस्टिस से। और कंसल्टेशन भी केवल कंसल्टेशन है, कंकरेंस नहीं है। वहां पर कंकरेंस का जहां पर शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर कहा जाता है कि आपको उससे बात करके उसकी बात माननी ही पड़ेगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एनजेएसी जो है वो न्याय प्रणाली में लाने से सरकार अपना दखल बढ़ाना चाहती है, सरकार अपना जो है वो दखल न्याय प्रणाली में बढ़ाना चाहती है, इसलिए एनजेएसी लेकर आना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सरकार है कौन? डेमोक्रेसी में सरकार कौन होता है? डेमोक्रेसी में वी द पीपल होते हैं, और वी द पीपल पार्लियामेंट चुनते हैं। तो 130 करोड़ लोगों ने पार्लियामेंट चुनी, उस पार्लियामेंट ने सरकार चुनी जिसका लोकसभा में बहुमत था, उस पार्लियामेंट में जिसका बहुमत था उसने सरकार चुनी। तो सरकार एक तरह से वी द पीपल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सरकार उसमें घुसने की कोशिश नहीं कर रही, सरकार व्यवस्था को सही करने की कोशिश कर रही कि एक तरफा निर्णय ना हो। निर्णय लेते समय बात बाकी ऑर्गन जिसका ओरिजिनल रोल है उसको करना चाहिए। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं, मेरे घर में कब्जा कर लिया आपने, कर लिया, आप बैठे हैं, और मैं कह रहा हूं भाई खिड़की खोल दो, तो एक कमरे में मैं भी बैठ जाऊं। इसको दखल कहेंगे कि आपके घर में दखल है, या इसमें ये कहेंगे कि भैया मेरे ही घर में हमें कोना मांग रहे? रोल किसका था? ओरिजिनली रोल तो सरकार का ही था, चला गया कॉलेजियम के पास। अब कॉलेजियम में सरकार कह रही है कि भाई हमारा रोल था, जो मेरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनली, उस फंक्शन में मेरी सलाह ले ली जाए। तो मेरे घर में बैठने के बाद मेरी सलाह लेने के लिए मैं कहता आपसे आग्रह कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो आप इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा बाहर निकलो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओरिजिनल व्यवस्था गवर्नमेंट है। मेरा अगला प्रश्न है कि जब हम कॉलेजियम या एनजेएसी की बात करते हैं तो देखने में आता है कि दोनों व्यवस्थाओं को लेकर इनके समर्थकों के अपने अपने दलीलें हैं, अपने अपने विचार हैं।
ऐसे में इस बात में कितना दम है कि कॉलेजियम व्यवस्था भारतीय न्यायतंत्र में परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया है? यस, अब उसका एक इलस्ट्रेशन समझिए। आजकल वो सौरभ कृपाल का चल रहा है, घोषित गे हैं वो। सौरभ कृपाल के पिता चीफ जस्टिस हुए हैं, बी एन कृपाल साहब। बी एन कृपाल साहब जिस समय कॉलेजियम में थे, उस समय के अपॉइंटमेंट कौन कौन हैं? उस समय के उस कॉलेजियम के अपॉइंटमेंट हैं बोबड़े साहब, रमना साहब, आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और एस के कौल साहब। ये सब उस कॉलेजियम के जिसमें बी एन कृपाल साहब कॉलेजियम हुआ करते थे। अब बी एन कृपाल साहब का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? बी एन कृपाल साहब का जिस समय अपॉइंटमेंट हुआ, उस समय ऑनरेबल चंचूड़ सीनियर चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो अब इसको क्या माना जाए? भाई मैं कहता हूं सब कुछ फेयर था, लेकिन जनता के मन में तो प्रश्न खड़ा ही होता है कि वाई वी चंचूड़ की रिकमेंडेशन पर बी एन कृपाल का अपॉइंटमेंट हुआ। बी एन कृपाल की कॉलेजियम के समय पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज के उनका अपॉइंटमेंट हुआ। उनकी कॉलेजियम के टाइम पर बी एन कृपाल साहब के बेटे सौरभ कृपाल का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। एक सामान्य जनता के मन में एक प्रश्न रहता है कि उन्हें तो समय पर न्याय चाहिए। जनता को एनजेएसी जो है इससे या कॉलेजियम इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा जो उनकी समझ के बाहर है। जनता चाहती है कि उन्हें समय पर न्याय मिले। तो ऐसे में सरकार न्यायतंत्र की तरफ से अदालतों में सालों से लंबित केसेस को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती थी, वो दे रही है। सरकार का रोल क्या है जुडिशरी में? जुडिशरी फॉर जुडिशियल फंक्शन इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फॉर जुडिशियल फंक्शन। और ये जो अभी तक बात कर रहे थे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात कर रहे थे, जुडिशियल फंक्शन की नहीं कर रहे थे। जुडिशियल फंक्शन इंडिपेंडेंटली काम अपना अच्छा करे, उसके लिए सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे। आप जो बताओ, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें माइक चाहिए, हमें सिस्टम चाहिए, हमें आदमी चाहिए, हम सब आपको दे रहे हैं। ये सरकार का रोल है। तो ये किरण रिजिजू साहब ने एक कार्यक्रम में, जिसमें बहुत सारे जजेस भी बैठे हुए थे, उन्होंने उसमें साफ कहा कि भाई हमने अपना रोल पूरा किया है। आपने जो मांगा, खासतौर से फंड आपको चाहिए, हम फंड दे रहे हैं जुडिशियल फंक्शन के लिए। आपको ऑनलाइन करना था, हमने आपको सिस्टम दे दिए। तो सरकार केस कम करने के लिए आपकी स्पीड स्मूथ हो, वो आपको दे दिया। गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाई, अपन तो हार्डवेयर दे सकते हैं। तो सरकार ने हार्डवेयर दे दिया। अब गाड़ी चलाने वाला कहाँ लेकर जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना सिस्टम कैसे बिठाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कोर्ट में एक और आ रही है कि हमारे जो कॉलेजियम है, वो अपना सबसे ज़्यादा समय तो अपॉइंटमेंट पे लगा रही है। आप मेरा मतलब समझ गए कि भाई हम तो वही है ना, अकेले। मेरा टाइम उस टाइम में ही काम करेंगे, या तो मैं अपॉइंटमेंट में ज़्यादा समय लगा लूँ, या फिर मैं कोर्ट में ज़्यादा समय लगा लूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ज़्यादा समय लगा लूँ या जुडिशियल फंक्शन में। तो मेरा ओरिजिनल रोल तो जुडिशियल फंक्शन का है। उसमें दिमाग लगाने की बजाय हम अगर दिमाग लगा रहे हैं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, तो सर पेंडेंसी तो बढ़ेगी। कोर्ट को रेगुलेट करने की बजाय जजेस को अपॉइंटमेंट करने में अगर हम समय ज़्यादा लगाएंगे, नीचे सभी हाई कोर्ट में कॉलेजियम होती है, उनका कमेटी होती है, वो भी इसी में दिमाग लगाती है, उसका भी समय ज़्यादा उसमें जाता है। जबकि चीफ जस्टिस और उसकी कॉलेजियम का जो फंक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो हमारे सिस्टम में, केसेस की पेंडेंसी ना बढ़े, कैसे स्पीडी ट्रायल हो। और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है अपॉइंटमेंट में, तो भी उनको उधर से लोड कम करने के लिए ये कहना चाहिए कि हम एक कमीशन के अपॉइंटमेंट करवाने में आपकी मदद करेंगे, जो इंडिपेंडेंट कर दो, मेरे ऊपर लोड ज़्यादा है, हम जुडिशियल फंक्शन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में मेरा टाइम जा रहा है, इसलिए पेंडेंसी बढ़ रही है। जुडिशियल फंक्शन में ज़्यादा समय देना चाहिए, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। अच्छी सार्थक चर्चा आपसे रही इस कॉलेजियम और एनजेएसी सिस्टम पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা ডিকে দুবের সঙ্গে কথা বললাম। এর সঙ্গে একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে কলেজিয়াম ব্যবস্থা সংবিধানে ছিল না এবং এটি কোনো সংসদীয় বিলের মাধ্যমেও তৈরি হয়নি।
ন্যায় ব্যবস্থায় স্বজন প্রীতির শিকড় শক্তিশালী করার কারণে আজ কলেজিয়াম ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে। ভারতের বিচার ব্যবস্থার অবস্থা এমন যে সুপ্রিম কোর্টে প্রায় 60,000 মামলা, হাইকোর্টে 42 লক্ষ এবং নিম্ন আদালতে প্রায় 3 কোটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। একদিকে ধনী ও প্রভাবশালীদের জামিন পেরোল দিতে আইনের মোড় বদলে দেওয়া হয়, অন্যদিকে কোনো কারণে গরিবের জীবনের সঙ্গে আইনজীবী আদালত জড়িয়ে পড়লে সেই জীবন অভিশপ্ত হয়ে ওঠে। বাংলার অবস্থা এমন যে 70 বছর পরও 1953 সালের একটি মামলার শুনানির তারিখ দেওয়া হয়। এভাবেই বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন এটাও যে ভারতের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিচার নাকি নিয়োগ। আজ এই পর্যন্তই। আগামী সপ্তাহে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাজির হব দৃষ্টিকোণে। এই পর্ব কেমন লাগলো আপনাদের জানাতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में।